Better give heading till then. Lesson 4, that is globalization and the Indian economy. Okay. 29 students are there with me. So children, start writing. First question is, what do you understand by globalization? Explain in your own words. Very, very important question from the examination point of view. What do you understand by globalization? Right, everyone? What do you understand by globalization? Spelling you can see from your textbook. Keep textbook with you every time. What do you understand by globalization? Sign of interrogation. Explain in your own words. So answer is the integration of domestic economy, the integration of just wait, some students are just entering, just wait children. Okay. The integration of domestic economy आज जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है उसमें आपने चैप्टर हमने रीड करा था उस दिन, आप खुद भी रीड करेंगे
और जो आपको इम्पोर्टेंट थिंग्स लगती है बीच में, जो भी इम्पोर्टेंट चीजें लगती है वो आपको नोट डाउन करनी है रफ कॉपी में, एंड दैट यू हैव टू सबमिट. फाइन, you will do that in rough notebook, not in fear, right? The integration of चाहे उसमें कुछ भी है, चाहे आपकी फुल फॉर्म्स हैं या कोई भी ऐसी चीज आपको लगती है कि इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट थिंग्स को ही आपने राइट डाउन करना है और उनको आपने सेंड कर देना है, ठीक है. The integration of domestic economy with the world economy is known as globalization. In this process, Please repeat. who are you? Who is this child who wanted I have to repeat it? Ma'am, Jannat. Okay, Jannat, maybe you have signal issue, beta. I am audible to all children? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I am audible properly? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. जन्नत आप ऐसा करो, प्लेस चेंज करो अपना, देखिए जहां थोड़ा सिग्नल आ रहा है वहां बैठो, ठीक है. Repeating again, I am the integration of domestic economy, the integration of domestic economy with the world economy is known as globalization. Full stop. In this process, the goods and services are produced. In this process, the goods and services are produced and marketed 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 globally. Written? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is a process of rapid integration between countries. It is a process of rapid integration between countries. Multinational corporations are playing बेटा आप लोग ना बीच में मतलब बहुत लेट ज्वाइन करते हो, जिससे कि मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है. Multinational corporations are corporations are playing a vital role in the globalization process. जो आपकी MNCs हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, that are playing a vital role. vital मतलब बहुत ही important role play करते हैं ये.
playing a vital, vital, vital role in the globalization process. Now, more and more goods and services. Now, more and more goods and services now more and more goods and services, comma, investments and technology are moving between countries. Are moving between countries. Most reasons of the world are EGIONS क्षेत्र. Most reasons of the world are in closer contact with each other, in closer contact with each other than a few decades back. Then की स्पेलिंग आएगी THAN. कंपैरिजन किया गया है. Than a few decades back. Few, 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 decades, DECADES, decades back. In globalization process, the countries can be connected through the through the movement of people. Through the movement of people. Written? Yes, ma'am. Yes. I repeat again. The integration of domestic economy with the world economy is known as globalization. In this process, the goods and services are produced and marketed globally. मैंने समझाया था आपको ग्लोब का मीनिंग. जब आप ग्लोब लेते हो तो उसके ऊपर कितनी कंट्रीज दिखती है आपको? एक ही कंट्री दिखती है, पूरा वर्ल्ड दिखता है? Give me answer. पूरा वर्ल्ड दिखता है. That's why it is known as globalization. It is a process of rapid integration between countries. Multinational corporations are playing a vital role in the globalization process. Now more and more goods and services, investments and technology are moving between countries.
Most regions of the world are in closer contact with each other than a few decades back. कुछ सालों से ही ये चीज बढ़ी है, ठीक है। अगर हम पिछले कुछ दशकों में देखें तो ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है, जबकि आज से अगर आप 30-40 साल बैक में जाएंगे तो तब ग्लोबलाइजेशन इतना ज्यादा नहीं था। Most regions of the world are in closer contact with each other than a few decades back. In globalization process, the countries can be connected through the movement of people. Second question, what was the reasons for putting barriers to foreign trade and foreign investment by the Indian government? Why did it wish to remove these barriers? टेक्स्ट बुक में देखिए, लिखिए वहां से क्वेश्चन। मैं किसी की भी टेक्स्ट बुक चेक कर सकती हूँ। तनिष्का दिखाइए अपनी टेक्स्ट बुक आप। तनिष्का, मैम। यस, okay. What was the reasons for putting barriers to foreign trade and foreign investment by the Indian government? Why did it wish to remove these barriers? देखिए सभी क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक सभी के पास होनी चाहिए ड्यूरिंग क्लास। Written? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, write down the answer. The Indian government, after independence, the Indian government बेटा आप क्लास लगाने बैठते हो ना तो बहुत ज्यादा मतलब ऐसे नहीं बैठने की यहाँ पे मतलब आप एकदम प्रॉपरली एक स्टूडेंट की ही तरह क्लास में आया करो और स्टूडेंट की ही तरह बैठा करो। आप बच्चों का ड्रेसिंग सेंस, आपका बैठने का वे, मैंने बहुत बार बोला है, डोंट सिट ऑन द बेड्स। बेड्स के ऊपर कोई नहीं बैठेगा, जस्ट टेक अ चेयर एंड टेबल, दैट इज द राइट वे टू एंटर इन द क्लास। हम क्या बेड पे बैठ के पढ़ा रहे हैं आपको? You are not a kid. All children, keep in mind, sit properly during the class. कोई भी मतलब तकिया लेके नहीं बैठेगा, कोई भी ऐसे टेढ़ा होके नहीं बैठेगा, सिट प्रॉपर्ली। अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो काइंडली लीव द क्लास, डोंट डिस्टर्ब अदर्स। ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्लास में देखने को। Write down the answer. The Indian government, comma, after independence, the Indian government after independence comma had put barriers to foreign trade, had put barriers to foreign trade. Yuvika, what is the meaning of barrier? Yes, ma'am.
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैरियर? यहाँ पे बैरियर वर्ड यूज करा है ना. Anybody else? बैरियर होता है रोक लगाना. बोलते हो ना कि बैरियर लगे थे, हम वहां पे जा रहे थे, हम भाखड़ावान गए तो वहां पे बैरियर लगे हुए थे, हमारी गाड़ी को अंदर नहीं जाने दिया. होता है किसी भी चीज पे रोक लगाना. The Indian government, after independence, had put barriers to foreign trade and foreign investment. After independence, had put barriers to foreign trade, FOREIGN, foreign trade and foreign investment. Full stop. This was considered necessary. This was considered necessary to protect the producers, within the country from foreign competition. This was considered necessary to protect the producers within the country from foreign competition. Full stop. India allowed imports of only essential items. India allowed imports of only. What is the meaning of import, children? Jannat. Jannat, meaning of import. Harsh. आयात. Yes. इंपोर्ट होता है आयात करना, यानी दूसरी कंट्री से सामान खरीदना. एक्सपोर्ट होता है अपनी कंट्री का सामान दूसरे देश को बेचना. सो इंडिया अलाउड imports of only essential items, ESSENTIAL, essential होता है बहुत जरूरी. essential items such as machinery, 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 fertilizers, fertilizers, FERTILISERS, fertilizers, petroleum, etc. Full stop. In 1991, the government decided
In 1991, the government decided that the time had come for Indian producers. अभी सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है, कंटिन्यूअसली चल रहा है. In 1991, the government decided that the time had come for Indian producers. The time had come for Indian producers to compete with producers around the globe. To compete with producers, to compete, COMPETE, प्रतिस्पर्धा करना. compete से competition बना word. Compete is the base word, right? In 1991, the government decided that the time had come for Indian producers to compete with producers around the globe. जैसे कि आपके स्कूल में कोई कंपटीशन होता है, पहले आपकी क्लास में होगा. क्लास में होने के बाद क्या होता है, पहले क्लास में कोई आपकी स्पीच सुनी जाती है तो आपकी क्लास के बच्चों के बीच में होता है. फिर आपका कंपटीशन स्कूल के बीच में करवाया जाता है कि आप ही के स्कूल के डिफरेंट क्लासेस के बच्चे जो हैं वो उसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अपनी स्पीच देते हैं. फिर वहां से सिलेक्टेड होके आप जो है वो इंटर स्कूल कंपटीशन होता है कि कुछ बच्चे उस स्कूल के होंगे, कुछ आप होंगे, किसी और स्कूल के होंगे. फिर जहां पे उस कंपटीशन में जो जीतेगा उसके बाद उनका जो है वो ब्लॉक लेवल पे होगा, देन आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा, फिर आप स्टेट लेवल पे जाते हैं, फिर नेशनल लेवल पे जाते हैं, फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं. सेम एज यहाँ पे भी वही कंपटीशन होता है कि पहले जो है वो अपनी ही कंट्री में चीजों का आयात निर्यात किया जाता था. एक स्टेट दूसरी को देती थी, दूसरी स्टेट को. फिर 1991 में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अब टाइम आ चुका है, नाउ द टाइम हैड कम फॉर इंडियन प्रोड्यूसर्स, की भारतीय जो उत्पादक हैं, भारतीय जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, अब उनका टाइम आ गया है कि वो जो है वो ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल पे जाकर जो है वो अपनी चीजों का आयात निर्यात करें, वहां पे जाके compete करें अदर कंट्रीज के साथ. तो अब जब जितना टफ आपका कंपटीशन होता जाता है, जितना ज्यादा आपको, आप देखते हो ना पहले सिंपल मैच होता है, फिर आपका कंट्री के बीच में होता है, फिर आपका डिफरेंट मतलब इंटरनेशनल मैच चलते हैं, राइट? तो उसमें क्या होता है, वो उतने ज्यादा टफ होते जाते हैं, वहां की जो सिचुएशंस होगी वो और ज्यादा टफ होती जाएंगी. तो वैसे ही जब आप अपनी ही कंट्री के अंदर जो थे प्रोडक्शन कर रहे थे, गुड्स एंड सर्विसेज का आयात निर्यात कर रहे थे, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि सारे के सारे लोगों का टेस्ट मतलब मैक्सिमम लोगों का सेम था. लेकिन जब आप ग्लोबली उस पे जो है वो जा रहे हैं, लेवल पे जा रहे हैं, तो वहां पे आपको हर कंट्री के लोगों का टेस्ट ध्यान में रखते हुए चीजों की प्रोडक्शन करनी पड़ेगी. ठीक है. So in 1991, the government decided that the time had come for Indian producers to compete with producers around the globe. To compete with producers around the globe. Around the globe. It felt that ऐसा फील किया गया था, it felt that competition would improve the performance of, it felt that competition would improve the performance of, competition would improve the performance of
producers within the country, within the country. जब आपको पता होता है कि आपकी क्लास में सिर्फ आप एक ही बच्चे हैं जिसकी राइटिंग सबसे सुंदर है और बाकी बच्चों की राइटिंग सुंदर नहीं है, तो आप लोगों का कंपटीशन भी किसी से नहीं होता है, तो आप अपने बीच में बिल्कुल चेंजिंग्स नहीं लाते हो। लेकिन जब आपको पता चलता है कि आपकी क्लास में 5-6 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी राइटिंग बहुत ज्यादा सुंदर है, तो आप में कंपटीशन की क्या भावना आती है? आप अपनी राइटिंग को उन बच्चों से भी ज्यादा खूबसूरत करने की कोशिश करते हो ना। घर पे कोई बच्चा बहुत अच्छे से टीचर को आंसर देता है, बहुत अच्छे से स्पीच बोलता है, बहुत अच्छे से न्यूज बोलता है, बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है किसी भी चीज को, तो आप में भी वो जील आती है कि नहीं, अगर वो बच्चा कर रहा है तो मुझे भी बेटर करना चाहिए। मतलब आप में एक वो भावना आ जाती है कंपटीशन करने की, और जिससे क्या होता है, जब आपने वो वाली फीलिंग आती है तो आपका जो है वो क्या होता है, कॉन्फिडेंस ग्रो होता है, आप मतलब क्वालिटी वाइज आप बहुत ज्यादा अप करते हो। ठीक है, तो सेम चीज ऐसा इसलिए 1991 में गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि अब जो है वो इंडियन जो भी प्रोड्यूसर्स हैं वो ग्लोबल लेवल पे अपनी चीजों की मार्केटिंग करेंगे। इससे क्या होगा कि कंट्री में रहते हुए ही जो है वो इनकी चीजों की क्वालिटी जो होगी, गुणवत्ता जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, मैंने पहले बोल दिया आपको कि अगर आपके घर पे 3-4 लोग हैं, आपको उनका टेस्ट पता है कि वो डेली जो है वो उनको, अगर आपको पता है कि उनको वेजिटेबल कौन सी पसंद है और इस वेजिटेबल में कितना आपको सॉल्ट ऐड करना है, कितना आपको कौन कौन से स्पाइसेस ऐड करने हैं, आप उसके हैबिचुअल हो। लेकिन जब आपको बोला जाता है कि आपको मास्टर शेफ में जाना है, मान लो वहां पे जाके आपको compete करना है, तो आप कितनी ज्यादा चीजें सोचोगे कि मुझे सैलेड इस तरीके का रखना होगा, ये वाली मुझे वहां पे प्लेटिंग ऐसे करनी है, ये वाली डिश मुझे वहां पे रेडी करनी है। तो ऑब्वियस है आपकी क्वालिटी क्या हो रही है उसमें, जब आप कंपटीशन की भावना से जा रहे हो तो आपकी जो क्वालिटीज हैं वो बहुत ज्यादा अप होती हैं। ठीक है, सो इट फेल्ट दैट कंपटीशन वुड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री सिंस दे वुड हैव टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी। क्योंकि जब आप ग्लोबल लेवल के ऊपर compete करेंगे तो आपको अपनी गुणवत्ता को तो बढ़ाना ही पड़ेगा, गुणवत्ता को तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इंक्रीज करना ही पड़ेगा, तभी आपकी जो मार्केटिंग है, आपकी गुड्स हैं, उनका डिफरेंट कंट्रीज में सेल होगी, अदरवाइज तो कोई नहीं लेगा ना। वुडलैंड की चीजें आप क्यों लेते हैं? वुडलैंड की चीजें इसीलिए लेते हैं क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। ठीक है, आप रिबॉक की चीजें क्यों लेते हो, आप नाइकी की क्यों लेते हो, आप रेड टेप की क्यों लेते हो? क्योंकि ब्रांड है, पता है इनकी क्वालिटी वाइज जो है वो कितने बढ़िया होंगे। ठीक है, शर्ट तो वैसे ही और भी मिल जाएगी, व्हाइट शर्ट रेड टेप में भी मिलेगी, आपको वुडलैंड में भी मिल जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट प्यूमा में भी, सब इसमें मिल जाएगी। लेकिन उसी चीज को हम क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे अगर हम 3000 की शर्ट भी लेंगे तो इसकी क्वालिटी जो होगी वो बहुत बढ़िया होगी। मतलब 1000 में से कोई एक शर्ट होती होगी जिसका नहीं अच्छा होता होगा, वो भी मैं मतलब बता रही हूँ, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमें पता है जो थ्रेड उसमें यूज किया गया है वो क्वालिटी वाइज बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। राइट, तो वही चीज बोली यहाँ पे कि इट फेल्ट दैट कंपटीशन वुड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स, की जो कंपटीशन है वो प्रोड्यूसर्स की परफॉर्मेंस को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा एंड इंप्रूव करेगा, सुधारेगा विद इन द कंट्री। बिकॉज सिंस यहाँ पे यूज किया है, सिंस दे वुड हैव टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी, क्योंकि उन्हें जो था वो क्या करना पड़ना था, जब उनको ग्लोबल लेवल पे अपनी चीजों की मार्केटिंग करनी थी तो उनकी क्वालिटी उनको बढ़ानी ही पड़नी थी, सुधारनी पड़नी थी। Thus, barriers on foreign trade and foreign investment were removed to a large extent. Thus, barriers on foreign trade 1991 से पहले रोक लगाई हुई थी कि हम अपना सामान डिफरेंट कंट्रीज में, ना तो हम वहां पे अपना व्यापार करेंगे ना ही वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन 1991 में वो जो बैरियर्स थी, जो रोक थी, वो हटा दी गई ताकि हमारे प्रोड्यूसर्स की गुणवत्ता में भी क्या हो, इम्प्रूवमेंट हो, वो भी आगे जाके मतलब अपनी सामान को बेच सकें। ठीक है, ताकि उनकी क्वालिटी वाइज जो प्रोडक्शन हो वो बढ़िया हो। Thus, barriers on foreign trade and foreign investment were removed to a large extent.